We are live. Shall we start? Yes. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Kirti Suta. Welcome to Facebook live session from Dr. Makkar's Diabetes calls, dinner parties, and each with a food menu richer than the last. Boxes and boxes of sugar-laden sweets and processed dry fruits, late night card parties with mindless snacking. Come friends, let's face it. Brilliant as the festival might be, it is not a friend to the people with diabetes. And ideally, would everyone would do well to refrain from this level of indulgence. But however, we feel that it is the happiest time of the year and no one should miss the fun. So don't a patient with diabetes has the right to enjoy the festival. So dear friends, let's discuss today with Dr. Makkar and Kavita so as to how to enjoy this festival without giving away the joy of eating. But definitely, yes, we have to become a mindful eater with judicious selection of food and should know how to manage sugars in this period. Welcome, sir. Welcome, Kavita. Hello Good everyone. afternoon, everyone. Festivals give the vibes of celebration and food. And especially in India, we being Indians, we have an emotional attachment with food. हमारी celebrations खाने से शुरू होती हैं, खाने पे खत्म होती हैं. And so we have food specialist Kavita with us. Welcome, Kavita. Hello Dr. Kirti. Hello sir. Hello everyone. Food is a very important aspect of the festival season, and in particularly sweets, they are the highlight. I'll say we Indians have an emotional attachment with the food. While too many sugary and fine sweets are not healthy for everyone, but they are especially unhealthy for people with blood sugar challenges. People with diabetes can certainly celebrate like everyone else, and they can indulge to some extent if they manage their blood sugars well. So let's discuss how to manage diabetes in festival season. Now, my first question to Kavita is regarding the food choices. I just want to know how do you explain to your patients to go for a mindful eating, how to decide what to eat, how much to eat, and how to enjoy the festival season? Yes Dr. Kirti. सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि दिवाली है, टाइम है सेलिब्रेशंस का, लेकिन अपनी शुगर मॉनिटरिंग हमको रेगुलर करनी है ताकि जो भी हम फूड्स ले रहे हैं हमें पता चले कि उसके इफेक्ट हमारी शुगर लेवल्स पे क्या आ रहे हैं. सेकेंडली, मील टाइमिंग्स हमें अपने फिक्स्ड रखने हैं मोर और लेस, ताकि हम मेडिसिन के साथ अपना खाना भी टाइम से ले. हाइड्रेशन हमने अपनी अच्छी रखनी है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है. स्वीट्स हम ले सकते हैं लेकिन माइंडफुल चॉइसेस के साथ, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज हमारे घर में सबके लिए बनी है तो हम उसका पोर्शन कम करके या मॉनिटर करके उसका इनटेक करें. और अगर हमने कहीं बाहर जाना है, कुछ हमारी डिनर पार्टीज हैं, तो वहां पे भी हम सिलेक्शन ऑफ फूड्स कर सकते हैं कि कैलोरी जो डेंस फूड्स हैं, जैसे कुछ तला हुआ खाना है, उसकी जगह हम थोड़ा सा कम कैलोरी वाला जो कम रिच फूड है वो हम ऑप्ट कर सकते हैं. ओवर ईट हम ना करें कभी भी अपने मील्स को, और सैलेड से स्टार्ट कर सकते हैं अपने मील्स को. सूप्स ले सकते हैं. कभी भी हमने बाहर जाना है तो उससे पहले हम कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं ताकि हम वहां जाके ओवर ईट ना करें फूड्स को. और वाटर इनटेक अच्छा रखें. पोर्शन साइज का ध्यान रखें कि ज्यादा ना हो. जो भी स्नैक्स में हमारे रोस्टेड स्नैक्स हैं हम वो ले सकते हैं. फ्रूट जूसेस की जगह हम फ्रूट्स, सैलेड्स और फ्रूट्स का इनटेक ज्यादा कर सकते हैं ताकि हम सबके साथ इंजॉय भी करें और कैलोरी ज्यादा ना लेकर ऐसे फूड ना लें जो स्पाइक्स करें हमारी शुगर्स को. सो पोर्शन कंट्रोल, गुड हाइड्रेशन and regular monitoring should be there in the festive season. जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो, या घर पे भी in fact. Wonderful. Sir, it's really a little challenging for the patient with diabetes to follow regular healthy meal plan
during this festival season, and especially when everyone else is enjoying, he or she is binging on their delicacies. So how do you advise your patients to manage this period? Uh, Thank you, Dr. Kirti. I think Kavita nicely told basic precautions क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि डायबिटीज पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली एडवाइस कर देते हैं. तो किसी भी क्रॉनिक इलनेस में जो लाइफ लॉन्ग इलनेसेस हैं जितनी भी हैं, उनके ट्रीटमेंट में हमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो दिमाग में रखना होता है कि ट्रीटमेंट से इस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी खराब होती है या कितनी हम बेटर कर सकते हैं. अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल बेटर है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है. बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सोशल एस्पेक्ट. नाउ whenever there is a social occasion or there is a festival, I think they should be having as normal life as anybody, any other individual without diabetes. ठीक है. Only thing is their focus on health should be more than a person who may be neglecting health because he does not have any illness. That may not be that same behavior that he is having is a healthy behavior. It may be unhealthy behavior, but as of now that fellow is able to do that unhealthy behavior because उसको immediate कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हो सकता है 5 साल बाद उसको इसी वजह से डायबिटीज हो जाएगी क्योंकि उसका बिहेवियर अनहेल्दी नहीं है या उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. बट जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपना हेल्दी बिहेवियर सस्टेन करें. बट एट द सेम टाइम ये भी दिमाग में रखें कि ठीक है, ये 5-7 दिन अगर मुझे इंडल्ज नहीं करना तो माइनर इंडल्जेंस से डायबिटीज का कोर्स जो है 5 दिन में चेंज नहीं हो रहा है. सो जैसे कविता ने कहा, पोर्शन साइज पे फोकस करें, कैलोरी डेंस फूड्स पे फोकस करें. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सो आपके सामने मिठाई रखी हुई है, कुछ ऐसी हैं जो घी से भरी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें घी शायद नहीं होगा. ठीक है. जैसे पनीर बेस्ड स्वीट्स होती हैं, बंगाली स्वीट्स होती हैं, उनमें घी नहीं होता, पनीर होता है बेसिकली, और शुगर होती है. और कई लो शुगर भी होती हैं, उनमें कम शुगर यूज होती है. सो आप गुलाब जामुन जो कि पूरा पहले उसमें भरा हुआ है, ऑल काइंड ऑफ फैट इज देयर, उसको भी हम फ्राई करते हैं, फ्राई करके उसको शुगर सिरप में डालते हैं. मतलब ऐसे गुलाब जामुन को हम ऐसे बनाते हैं जैसे वो बेचारा सबसे गरीब था शुरू से और उसको इतना कुछ चाहिए कि वो जिंदा हो जाए, तो इतना उसमें कैलोरीज भरते हैं. तो ऐसे मिठाइयों की जगह आप बंगाली मिठाई टाइप की चीज़ खा सकते हैं जिसमें खाली पनीर और शुगर है, तो आपका ऑयल भी नहीं है, आपको प्रोटीन भी मिल रही है. अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं तो आपका शुगर का स्पाइक भी कम होता है. रसगुल्ला जो होता है उसमें अगर आप थोड़ा सा स्क्वीज कर दें तो उसका शुगर आप काफ़ी कम करके खा सकते हैं. टेस्ट के लिए खाना है आपने. मैं कॉमनली अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, आपको मीठा खाना है, मिठाई खानी है, पेठा खाइए. पेठे में क्या है? शुगर है और वेजिटेबल फाइबर है. सो उसकी एक्चुअली कैलोरी वैल्यू जो है शुगर से भी कम है, प्लस इट कंटेन्स फाइबर. आपको टेस्ट के लिए खानी है मिठाई, पेट भर के नहीं खानी है. तो टेस्ट आप ले सकते हैं हर चीज़ का. और अगर आपको चलो आपको गुलाब जामुन ही खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर के खाएं, आप आधा पीस खा के भी टेस्ट आपका हो जाता है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोग समझते नहीं है कि शुगर का जो टेस्ट होता है ना, वो लास्टिंग टेस्ट होता है टंग के ऊपर. कभी भी आप नोट करो कि आपने मीठा खाया है, उसके बाद अगर आप मीठी चाय पी रहे हैं तो उसका टेस्ट आपको फीका आता है, क्योंकि जो टंग पे आपने एक बारी शुगर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया तो वो टेस्ट परसिस्ट करता है. सो आफ्टर फर्स्ट स्पून ऑफ स्वीट, सेकेंड स्पून इज नॉट एडिंग टू योर टेस्ट प्लेजर. टेस्ट तो आपका हो गया, उसके बाद जो एडिशनल खा रहे हैं आप, वो अननेसेसरी कैलोरीज होती है. सो अगर आप कोई भी स्वीट ले रहे हैं, आपने 1 या 2 चम्मच खा लिए, उसके बाद टेस्ट में आपको कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला और एक्स्ट्रा, वो वहीं मिल गया आपको. सो क्वांटिटी आपको कम करना बहुत आसान होता है शुगर स्वीट्स की. बट होता क्या है कि हमारे सामने चीज़ें पड़ी होती हैं और एक रिफ्लेक्स होती है कि हाथ आगे जाता है और मुंह पे आता है, हाथ आगे, और इसी प्रोसेस में लोग खाते रहते हैं.
दूसरी चीज है, आज की डेट में आई थिंक ओबेसिटी बहुत बढ़ चुकी है इंडिया में, जो लोग रियलाइज नहीं करते। दिल्ली सिटी में ऑलमोस्ट 50% ऑफ पीपल आर ओवरवेट। सो दैट मीन्स हर फैमिली में एक दो तीन मेंबर ऐसे होंगे जिनका वेट ज्यादा है। तो ये खाली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी, कि हमें खाने पे फोकस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए फेस्टिवल, बट पोर्शन साइज कंट्रोल करना चाहिए, जुडिशियस चॉइसेस हमें बनानी चाहिए, बिंज ईटिंग कम करनी चाहिए। बाहर जाओ आप, ठीक है, जरूर खाना चाहिए, सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए, पर टेस्ट के लिए ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये सारी बेसिक चीजें जो आई थिंक अगर कोई भी करता है तो मेरे ख्याल से बड़े इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पेशेंट्स की टेंडेंसी होती है कि अभी तो मैं खा रहा हूँ तो मेरी शुगर बढ़ी हुई आएगी, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इस पीरियड में आप रेगुलरली अपनी शुगर चेक करें, सो दैट आपको आइडिया होता है कि कोई पर्टिकुलर फूड आइटम से मेरा शुगर ज्यादा स्पाइक करता है, मुझे इसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज मैंने खाई, उससे स्पाइक नहीं किया, वो मेरे लिए बेटर। तीसरी चीज, आपको सडनली ये रियलाइज करने को नहीं मिलेगा कि मेरा शुगर 300 पहुंच गया है। अगर आप रेगुलर चेक करें, आप हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद चेक करके आएंगे तो हमें भी नहीं पता आप इस बीच में कितनी आप फ्लक्चुएशंस कर चुके हैं। सो इसलिए मॉनिटरिंग जो है शुगर की बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करें। हेलो यस, वी सर, कैन एम हियर। आई ऑडिबल ना? यस Yes. यस यस। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पेशेंट्स हमें बाद में कंप्लेन करते हैं कि पोस्ट दिवाली ऑल्सो, कि सर घर में डब्बे आ गए थे, अब उन्हें तो खत्म करना ही पड़ता है। सो व्हाट्स योर हम टेक ऑन इट? हमारे देश में जितने लोगों के घर में डिब्बे आते हैं, उससे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना खरीद के भी नहीं खा पाते बेचारे, तो उन लोगों में बांट दो। ऐसी जगहों, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्स्ट्रा जो आपका फूड बचा हुआ होता है वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। आजकल तो एप्स अवेलेबल हैं फोन्स के ऊपर, जिसमें आप सरप्लस फूड अगर आपके पास है, आप ऐप में डाल दो, लोग आपसे कलेक्ट करके गरीब लोगों में बांट देते हैं। सो उसको बांटो, उसको किसी और को दो जिसको उसका, जो बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए वो कैलोरीज भी काम आएंगी, क्योंकि उस इंसान को शायद पूरी कैलोरीज खाने को भी नहीं मिल रही हैं, और उसके लिए भी एक सेलिब्रेशन का कंपोनेंट हो जाएगा कि उसको भी कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। तो यू कैन एक्चुअली गिव इट अवे टू सो मेनी पीपल। आपके घरों में इतने सारे मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, आपके पास धोबी भी आता है, आपके गेट पे वॉचमैन भी हैं, आपके रोज इतने सारे वर्कर क्लास हैं जिनसे आपको इंटरेक्ट करना होता है, उन सबको बांट दो। जरूरी थोड़ी है हमने खाना है सब कुछ, सब कुछ हमारे खाने के लिए नहीं बना हुआ है इस दुनिया में। और मैं तो पेशेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो उसके घर भेज दो। यस कीर्ति, तुम्हारी आवाज मेरा ख्याल तुम्हारा कनेक्शन लूज है इसका हेडफोन का, वहां से उसको। हेलो। अब आ रही है सर हाँ आवाज? बिल्कुल आ हाँ रही है। जी, अब आ रही है। हेलो अब हाँ आ आ रही रही है। है, आ रही है। सर, जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि वन शुड नो हिज और हर फूड, देयर शुड बी judicious selection of the food and mindful eating of the food if you want to manage your blood glucose levels during the season. Kavita, my next question is to you. पेशेंट्स हमेशा ये बोलते हैं खाना तो हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि स्नैकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होती है। सो हाउ टू मेक अ प्रॉपर चॉइस ऑफ स्नैकिंग? हम कैसे सिलेक्ट करें कि हमें क्या स्नैक्स खाने चाहिए, किस अमाउंट में, या कैसे बैलेंस करना चाहिए हमें उनको? तो जैसे कि अभी पहले मैंने कहा था कि हमको कैलोरी डेंस स्नैक्स अवॉइड करने हैं, जैसे फ्राइड फूड्स हो गए, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, टिक्की हो गई। उसकी जगह अगर हम पोहा खा लें या ढोकला ले लें विदाउट शुगर वाला पानी, तो ये एक बेटर ऑप्शन होगी स्नैक्स की। अदरवाइज स्नैक्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बेक्ड
चकलीज आती हैं आजकल, प्लेन सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं आप, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, और रोस्टेड सोया से बनी हुई स्नैक्स ले सकते हैं, कॉटेज चीज के रोल्स ले सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो मिक्स्ड विद कॉटेज चीज के रोल्स बना के सर्व कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी गुड स्नैक ऑप्शंस। इसके अलावा एग्स के सैंडविचेस, एग वाइट्स के सैंडविचेस या कॉटेज चीज के सैंडविचेस भी आप ले सकते हैं अपनी स्नैकिंग में। सो आइडिया इज कि अब हम कैलोरी डेंस स्नैक्स की जगह थोड़े लो कैलोरी स्नैक्स में स्विच कर जाएं, जिससे हमें प्रोटीन भी मिले, फाइबर भी मिले, शुगर में स्पाइक्स ना आए और हमारा सेटाइटी लेवल भी बना रहे। सो देर आर अ वेराइटी ऑफ सूप्स आप ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, स्प्राउट्स चिकपीस के, लोबिया के, इसको भी आप स्वीट कॉर्न सैलेड में मिक्स करके ले सकते हैं। सो देर आर वेराइटी ऑफ स्नैक्स जो हमारे सेटाइटी को भी बनाएंगे, फाइबर भी देंगे, प्रोटीन रिच भी हैं और हमारी शुगर में बहुत स्पाइक्स नहीं लाएंगे। Sir, would you like to add anything? Yes, definitely. So what Kavita has told is absolutely right. But होता क्या है कि इस पीरियड में हम मेंटली सेलिब्रेशन मोड में होते हैं। तो एक डायबिटीज पेशेंट जिसको आप वीक ऑन वीक यही पोहा और रोस्टेड स्नैक और नॉन फ्राइड फूड्स और ये सब चीज़ें रूटीन में उसके लाइफस्टाइल है, तो उसके लिए सेलिब्रेशन के टाइम पे कुछ चेंज उसको चाहिए होता है, तो इंटेलिजेंस की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चलो आप ये तो आप खा अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छा है, बट आप इंडल्ज करना चाहते हैं, आप इंडल्ज लिमिट में करिए। आपको समोसा खाना है तो ज़रूरी नहीं कि आपने बड़ा वाला या पूरा समोसा खाना है, आप उसमें से आधा समोसा लेके भी अपना टेस्ट और शौक पूरा कर सकते हैं। आपने कचौड़ी खानी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 कचौड़ियाँ खानी है या बड़ी वाली भर के खानी है, आप उसमें से भी एक पीस लेके अपना टेस्ट पूरा कर सकते हैं। घर में नॉर्मली पकोड़े बनते हैं, इन पीरियड्स में लोग पकोड़े, पूड़ियाँ सब कुछ बना रहे होते हैं, छोले भटूरे बना रहे होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बन रही होती हैं, सब फ्राइड होता है। तो आप उसमें भी चॉइसेस ले सकते हैं। पकोड़े बन रहे हैं, आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 3 या 4 पकोड़े खाने हैं, दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वो 4 पकोड़े खाने से आपकी शुगर बहुत ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर आप रोज पकोड़े खा रहे हैं और रोज प्लेट भर भर के खा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, या आप एक बार भी प्लेट भर के खा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। बट अगर आप 2 या 4 पीस किसी चीज के खा रहे हैं, आपने यू आर पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, यू आर एंजॉइंग विद एवरीबडी इन द फैमिली, एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you are monitoring your sugar levels, then there is no problem. Moderation is the key. Moderate amounts में आप कुछ भी ले रहे हैं वो मैनेजेबल होता है, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही पीरियड, एक ही मील में आपने सारी चीजें मॉडरेट अमाउंट में ले ली। एक मॉडरेट गुलाब जामुन, एक मॉडरेट समोसा, एक मॉडरेट पूड़ी, एक मॉडरेट भटूरा, सब मिक्स कर दिया कि मैं मॉडरेट खा रहा हूँ, ये तो ये मॉडरेट नहीं होता। आपने एक मील में एक चीज ले ली, बाकी चीजें आपने हेल्दी चॉइसेस रख ली। आपके घर में छोले भटूरे बन रहे हैं, आप भटूरा छोड़ दीजिए, आप उसकी जगह पे नॉर्मल रोटी खा सकते हैं, या होल व्हीट कुलचा टाइप चीजें। आजकल ब्रेड्स की इतनी ऑप्शंस आ गई हैं मार्केट में, यू कैन मेक चॉइसेस, so you can avoid fried foods. Or if you want to have bhatura, you can have a small bhatura or half bhatura rather than having 3 bhaturas. You can have 1 puri rather than having 5 puris. सो आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और दूसरी चीज मॉनिटरिंग अपनी करते रहनी। एज लॉन्ग एज आप बहुत ज्यादा अपना शुगर खराब नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें मैनेजेबल हैं, प्रोवाइडेड आप मॉडरेशन में कर रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हर फेस्टिवल पूरे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Talking about monitoring, is it so easy to monitor sugars during this celebration period? क्या आपको ये नहीं लगता कि सब enjoy कर रहे हैं and you check your sugars? Is it feasible? Is it practical?
कोई मुश्किल नहीं है आजकल। कोई शुगर चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूजिंग ए ग्लूकोमीटर एवरीबडी कैन टेस्ट शुगर। अगर आपको थोड़ी भी लगता है कि अप्रेंशन है, मैं लोगों के बीच में नहीं चेक कर रहा, आप पॉकेट में रख सकते हैं ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स को। आप बाथरूम में जाके चेक कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चेक करना। इट इज ओनली थिंग इज मेंटल ब्लॉक रहता है। दूसरी चीज है, आपने एक बार फास्टिंग चेक कर ली, आपको दिन भर तभी चेक करनी है जब आपको या तो लो होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यू वुड लाइक टू चेक आफ्टर 2 hours आफ्टर द मील। बाई द टाइम आप अपने घर पहुंच चुके होते हैं, 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद खाना खा के, आप घर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो कोई उसमें मुश्किल चीज नहीं है। आई थिंक शुगर नहीं टेस्ट करना जो है वो यूजली एक बहाना ही रह होता है। अदरवाइज शुगर टेस्टिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर आप शुगर अपनी मॉनिटर नहीं कर रहे तो बेसिकली आप, it is like driving a car in dark without your lights on and without any sense of direction. आप खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितनी शुगर जा रही है, आपको कुछ नहीं पता, आप चेक ही नहीं कर रहे। सो आई थिंक मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज इज one of the key things which can allow you to celebrate properly. अगर आप चेक नहीं कर रहे तो आप कुछ भी करते रहे, आप कहाँ गलत होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। My voice is breaking, sir, today. Am I audible? Yes. कीर्ति, एक बार उसको आप ना जो इसका जैक है हेडफोन का, लैपटॉप से निकाल के उसको पूरा दोबारा से टाइटली फिट कर दो। नो, नहीं यार। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसको तुमने निकाला कहाँ से? कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, हेडफोन ठीक वाला है कि खराब? इधर आ जाओ, फिर चेक करो करता तो काम आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो, अब आ रही है। ठीक है। आ रही है ना? हाँ जी। Sorry for the interruption. Shall we continue? Yes. Kavita, my next question to you is, what advice do you give to your patients regarding water intake? How do you advise them to keep their hydration levels fair? इसके लिए भी वी हैव टू बी लिटिल माइंडफुल। जैसे हम मील्स के पोर्शन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वाटर इनटेक का भी हमको ध्यान रखना होता है। जनरली हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि 8 to 10 ग्लासेस हमें पानी के पूरे दिन में लेते रहना है। इसका इनटेक हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको टाइम ना मिले तो मील्स के पहले ले लीजिए, या लेमन वाटर की फॉर्म में ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, या मेडिकेशन के साथ आप पानी ले रहे हैं तो किसी भी फॉर्म में वाटर फुल हाइड्रेशन अपनी रखनी है हमको। स्नैकिंग से पहले ले सकते हैं, मील्स के पहले ले सकते हैं, आफ्टर एवरी 2 hours का रिमाइंडर लगा सकते हैं कि वी हैव टू टेक वाटर। थोड़ा सा माइंडफुली हमको अपना हाइड्रेटेड रखना है, बिकॉज वी आर बिंजिंग ऑन हेवी स्नैक्स एंड स्वीट्स। वी हैव टू बी माइंडफुल एंड कीपिंग आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड। Sir, would you like to add anything else? तो आई थिंक शी इज राइट। पानी हमें बेसिकली, पानी या लिक्विड्स की इनटेक हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए, और उसमें जरूरी नहीं है कि आप खाली पानी पी रहे हैं। सारी लिक्विड इनटेक्स आपकी अकाउंट फॉर करती हैं आपके हाइड्रेशन के लिए। सो लाइक आई एम हैविंग ब्लैक टी राइट नाउ, इट विदाउट शुगर, इट डज नॉट ऐड एनी कैलोरीज and you are still having hydration. Similarly, you have coffee, you can have nimbu pani, you can have soups, whatever you take, make sure that you are adequately hydrated. So
ऑन एन एवरेज आई थिंक डेली इनटेक विंटर्स में भी आपकी 1.5 लीटर से ऊपर रहनी चाहिए, और इंडिया में समर्स particularly north में is very harsh, so during those days if you are, unless you are sitting all the time in the AC environment, your intake should be anything upwards of 3 to 5 liters. So हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन अगर नहीं होता है तो आपका एग्जॉस्शन भी ज्यादा होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उसमें. What we say is 6 to 8 glasses of water is So must. that makes it about 2.5 liters. 8 glasses Yes. is about 2.5 So it gives liters. a rough idea of. Yeah. So usually people with diabetes or normal people also otherwise, we tend to neglect our exercise part. But how to manage this issue? Yes, this is very avoiding important cooking- issue. होता क्या है कि अभी दिवाली टाइम, अभी पार्टी टाइम शुरू हो गया. आप रोज रात को बाहर हो पार्टी में या कार्ड पार्टी में, आप लेट आ रहे हो, सुबह भी लेट उठ रहे हो, तो आपका एक्सरसाइज शेड्यूल भी खराब होना शुरू हो गया. सो नाउ यू आर हैविंग टू प्रॉब्लम्स. इट इज नॉट जस्ट प्रॉब्लम ऑफ ईटिंग or excess calorie intake that is happening during the day. You are also missing on exercise, and once you stop exercising तो आपका insulin resistance वापस बढ़ना शुरू हो जाता है. Exercise is very important to cut down your insulin resistance and keep your metabolism in healthy state. So ऐसा नहीं है कि आप सुबह लेट उठ रहे हैं, अब आपको काम पे जाना है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. आप जो एक्सरसाइज आपको 1 घंटा करनी है रूटीन में, उसको आप 15-15 मिनट में 4 बार स्प्लिट कर लें वॉक को. आप सुबह 15 मिनट वॉक करके जा सकते हैं, आप ऑफिस से 15 मिनट लंच के टाइम निकल के वॉक कर सकते हैं, आप शाम को वॉक करते हुए आ सकते हैं रास्ते में, आप रात को वॉक कर सकते हैं. बट यू मस्ट मेंटेन अ रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज से आपका सिस्टम भी ठीक रहता है, आपकी फिटनेस लेवल भी ठीक रहता है, आपका कैलोरी यूटिलाइजेशन भी बेटर होता है, और शुगर कंट्रोल तो डेफिनेटली बेटर होता ही है. Regular exercise of 45 minutes to 1 hour every day gives you a benefit equal to one good medicine used for diabetes and blood pressure both. So actually आप एक अपनी additional दवाई कम कर लेते हैं, बीपी की भी, शुगर की भी, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. It's about discipline. So what is the importance of pre-festival and post-festival sugar controls? So अगर आपका फेस्टिवल टाइम से पहले शुगर कंट्रोल अच्छा है तो इससे 2-3 चीजों का आपको आइडिया मिलता है. एक कि ये पेशेंट आपका डिसिप्लिन पेशेंट है, तभी उसका शुगर कंट्रोल ठीक है. Chances of maintaining that control during festival are high, because somebody is maintaining control regular basis does not want to lose control for 5 days of activity. दूसरी चीज ये अगर आपका पहले कंट्रोल अच्छा है, आपका 5 दिन कंट्रोल थोड़ा बहुत डेविएशन में जाएगा भी, तो आपका ओवरऑल कंट्रोल सस्टेन करना इजी है. बिकॉज आप जैसे ही फेस्टिवल के बाद आप वापस नॉर्मल लाइफ में आएंगे, नॉर्मल रूटीन में आएंगे, आपके शुगर लेवल्स वहीं ड्रॉप कर जाएंगे वापस, जो थोड़े बहुत बढ़े. जिसका कंट्रोल शुरू से ही खराब है, अब वो फेस्टिवल टाइम में इसका मतलब है और इंडल्जेंस और नेग्लिजेंस होनी है. तो दीज आर पीपल हु आर प्रोन टू एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि इन लोगों की फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इनके शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने का भी रिस्क जितना है उतना ही लो होने का भी रिस्क होता है. तो दोनों ही तरफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं. दूसरी चीज है, जब शुगर लेवल्स बड़े होते हैं, आपके एक्यूट इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है, आपकी किडनी डैमेज होने का भी रिस्क बढ़. कोई भी एक्यूट, जब शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा है तब कभी भी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है. लॉन्ग टर्म रिस्क तो बढ़ता ही है, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ बढ़ने से, शुगर बढ़ने से भी. दूसरी चीज है, जब भी आपका शुगर कंट्रोल ज्यादा खराब होता है, उसको वापस लाने में आपको टाइम लगता है, तो आप एक लंबे पीरियड के लिए खराब कंट्रोल में निकल जाते हैं. जिन लोगों का पहले ठीक है, 5-7 दिन उनका कंट्रोल खराब होगा, वापस ठीक आ जाएंगे, तो उनका डिस्टर्ब पीरियड सिर्फ 5-7 दिन. ऐसे पेशेंट्स का 1 महीना पहले खराब है, 1 महीना बाद खराब चल रहा है, तो डिस्टर्ब पीरियड बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तो इनका कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता ही जाता है. Another very important point is
talking about natural sweeteners. This is my question to Kavita. Kavita, what do you advise your patients about natural sweeteners? Can we use them? सो डॉक्टर कीर्ति, स्वीटनेस अभी जो भी रिकमेंडेड डोजेज में अगर हम लेते हैं तो दे ऑल आर सेफ, सो वी कैन यूज इट विदाउट एनी गिल्ट. और जैसे कि हम डेजर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि दिवाली टाइम है तो डेजर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं. लाइक अगर आप हलवा बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं तो आप टोन्ड मिल्क लीजिए और उसमें थोड़े बहुत स्वीटनर डाल सकते हैं, तो वो डाल के और उसकी डेजर्ट आप डायबिटिक पेशेंट्स आराम से ले सकते हैं. ऑल आर सेफ टू यूज एंड वी कैन यूज इट इन आवर डेली रूटीन्स. One more thing I would like to add is we have sweets with artificial sweeteners and Yes. ice creams also with artificial sweeteners Yes. available. सो उसमें एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. होता क्या है कि हम बहुत बिल्कुल गिल्ट फ्री होके खाते हैं. हमने तो हम स्वीटनर वाली स्वीट खा रहे हैं. अगर उसमें घी बहुत ज्यादा है, जो कि नॉर्मली स्वीट्स में होता है, तो उसके शुगर फ्री होने से कोई हमें फायदा नहीं होता है ज्यादा. बिकॉज 20 grams 5 grams of sugar is adding just 20 calories and 5 gram of oil is adding 50 calories. ठीक है. तो जो आपकी जो स्वीट्स होती हैं उनमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो आता है वो घी की वजह से आता है, कैलोरीज ऑयल की वजह से, ना कि शुगर की वजह से. दूसरी चीज है कि जैसे कविता ने पॉइंट आउट किया कि आप घर में खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, जो चीजें जैसे हम डबल टोन यूज करते हैं दूध, बेसिकली इसलिए करते हैं कि उसमें फैट कंपोनेंट कम हो जाए. ऐसे ही आप जो हलवा बना रहे हैं या जो भी डिशेस बना रहे हैं, आप वो कम ऑयल में कुक कर सकते हैं. आप हलवा 2 चम्मच तेल में भी बना सकते हैं, आप 2 कड़छी तेल में भी बना सकते हैं, और आप 2 बॉटल तेल में भी बना सकते हैं. एक बहुत पॉपुलर डिश है मैसूर पाक. आई थिंक सबने खाया होता है कभी ना कभी. तो मुझे लगता है उसमें वो जैसे हलवे में तो आप सूजी या आटे में जिसमें घी डालते हैं, उसमें वो घी में सूजी डालते हैं शायद. सर वो साउथ में मिलता है, साउथ साइड. हाँ, मैसूर पाक इस मैसूर का. तो वो मतलब आप थोड़ा सा अगर एक पीस मुंह में रखो तो ऐसे लगता है घी खा रहे हो आप, इतना घी होता है उसमें. सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कैलोरी इनटेक आप कैसे कम कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा जुडिशियसली इन चीज़ों को किया जाए तो ये नहीं कि डायबिटीज पेशेंट के लिए ज़रूरी है, आई थिंक पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए ज़रूरी है. जब पार्टी टाइम होता है डायबिटीज पेशेंट तो फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होता है. जिस इंसान को डायबिटीज है वो तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस फिर भी ले रहा होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उसके कुछ होता है. जिसको नहीं है वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं हेवायर बिहेवियर होता है कई बार लोगों. तो वो लोग ज्यादा इंडल्ज कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है. सो आइडियली आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फैमिली टू फोकस ऑन what kind of foods is being made for celebration, how much is being made, how much is being eaten, और मतलब बाकी लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है. यूजुअली अगर आप कंपेयर करोगे, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है जिसका वेल कंट्रोल डायबिटीज है, उसकी हेल्थ एक नॉन डायबिटिक पेशेंट जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे बेटर होती है. क्योंकि वो दूसरा जो इंसान है उसको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसका हेल्थ पे फोकस होता ही नहीं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम कर रहे हैं ये नहीं सोचे कि हमारे घर में एक इंसान को डायबिटीज है या 2 को डायबिटीज है. इम्पॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो ये देखें कि सबकी हेल्थ के लिए क्या इशू है. और अगर जो चीज आपकी सबकी हेल्थ के लिए ठीक है, आई कैन बेट वो डायबिटीज पेशेंट के लिए कभी खराब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सब चीजें जो बाकी लोग अपने ये सोच के खा सकते हैं कि ये हेल्थ हमारी खराब नहीं करेगी, वो इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज बड़े आराम से खा सकते हैं. उनके लिए सिर्फ थोड़ी सी प्रिकॉशन ये एक्स्ट्रा है कि आपको शुगर अपनी मॉनिटर करनी है, पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, इंडल्ज उतना ही करें जितना आपकी शुगर लेवल्स और दवाइयाँ आपकी मैनेज कर सकती हैं. दूसरा इंसान थोड़ा इंडल्ज ज्यादा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे वो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं. That means being a diabetic does not mean to give away the joy of eating.
You But we should, have to be I judicious. strongly believe every person who has diabetes or overweight or obesity has the same right to celebrate every single festival and enjoy every single day as anybody without these conditions. अगर हम किसी डायबिटीज या ओबेसिटी वाले इंडिविजुअल को हम ट्रीटमेंट के साथ अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं कर सकते तो हमें ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना जरूरी है। आप, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे मैंने शुरू में डिफाइन किया, इट इज नॉट जस्ट कि आपका शुगर लेवल कितना है, A1C कितना है आपका। आप डिप्रेशन में हो, A1C ठीक है, उस डिप्रेशन का क्या फायदा है हमें, ठीक है ना। सो आपको हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट सेलिब्रेट, बट थोड़ा सा जुडिशियस, थोड़ा सा आप अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करें कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे आप। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, आज रात को पार्टी हुई, सुबह आज यार मैं कल रात को बहुत खा लिया, अब नहीं खाऊंगा। सो मील स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपने मेडिसिन लेनी है, उसने 24 घंटे आपको कवर करना है। अगर आप मील स्किप करेंगे या कम पोर्शन कम खाएंगे ओवरऑल जितना आपको रूटीन में खाना है, तो आपके शुगर लेवल्स लो भी होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी। दूसरा, अल्कोहल इज कॉमन थिंग, आजकल पार्टी टाइम में अल्कोहल बहुत कॉमनली चलती है। सो अल्कोहल इनटेक हैज टू बी इन मॉडरेशन। आज ही एक पेशेंट था, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं कितनी ड्रिंक लेते हो, 200 ml रोज, 200 ग्राम रोज पीते, तो इतनी तो नहीं चलेगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दिन 200 ग्राम पी, तो आपने एक दिन में 200 ग्राम पीनी जरूरी नहीं है, आप उसको 45 ml करके 4 दिन में पियो। You enjoy 4 days rather than just killing one day with binge drinking and have a bad morning in the next day. So you enjoy a drink which is 45 ml, max 60 ml. You enjoy for next 4 days. It is not going to kill your sugars. It is not going to kill you. It is not going to damage you. But opt for healthy drinking. वो 5 दिन में एक दिन पीनी है और वो 5 गुनी पीनी है, उसका कोई सेंस नहीं, बिकॉज वो आपको शुगर कंट्रोल भी खराब करेगी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी बढ़ेगा, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ पुश कर सकती है उतनी अल्कोहल। सो दैट इज नॉट रिकमेंड। सो एवरीवेयर, एंड ऐसा कोई ये डिसिप्लिन नहीं है कि जो हम कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल वाला काम है। जनरली जो लोग 60 ml पीते हैं या 45 ml ड्रिंक लेते हैं, वो ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। जो लोग 250 ml पीते हैं, उनको बाकी सब एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चूज करना है कि आप अपना एंजॉयमेंट चाहते हैं या आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बने हैं, तो आप जरूर 250 ml पीजिए, बाकी लोगों को बहुत मजा आएगा उसका, क्योंकि वो पूरा तमाशा 1 घंटे का 2 घंटे का सब लोग देखेंगे। तो इससे बेटर है आप अपना सिस्टम में रहें, डिसिप्लिन में रहें, सो दैट यू एंजॉय एवरीथिंग। Another very important question to you is कि patients who are taking insulin, is there any other more special precautions which they need to take care of? सो अभी आज की डेट में फॉर्चुनेटली हमारे पास इंसुलिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इंसुलिन की, और उनकी डोजिंग ऑप्शंस भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। सो जो लोग सिंगल डोज मॉडर्न इंसुलिन पे हैं, जैसे हम लैंटस यूज करते हैं, टूजियो यूज करते हैं, ट्रेसिबा यूज करते हैं, बेजालॉग, ये सब बेजल इंसुलिन है। सो इनकी डोज अगर आपकी 2-4 घंटे आगे पीछे भी हो जाती है, जो बिल्कुल एडवांस हैं जैसे ट्रेसिबा, टूजियो, तो 3-4 घंटे आपकी डोज भी आगे पीछे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर होती है आपको, कि आप 6 बजे लगाते हैं, आप चले गए 6 बजे पार्टी में, रात को 10 बजे आए तो 10 बजे लगाते हैं, या आप 8 बजे लगाते हैं, आप 6 बजे जाना चाहते हैं तो आप 6 बजे लगा के जा सकते हैं, उससे आपको कोई चेंज नहीं आने वाला। सिमिलरली कुछ दवाइयां जो आप खाने से पहले लेते हैं और उनका पूरे दिन में आपकी शुगर लो नहीं करेगी,
कुछ मॉडर्न मेडिसिन है। सो इफ यू आर यूजिंग दोज मेडिकेशन तो शुगर लो होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। ऐसे ही मील बेस्ड इंसुलिन जो होते हैं, प्रांडियल इंसुलिन जिनको हम कहते हैं, वो अब इतने अच्छे हैं कि अगर आप जब खाना खाने बैठे उसी टाइम लगाएं। ऐसा नहीं कि आपको आधा घंटा पहले लगाना है या आप आधा घंटा वेट करनी है उसके लगाने के बाद। जब आप खाना खाने बैठे हैं उसी टाइम लगाएं। अगर आप खाना खाते हुए भूल गए, आप खाना खाते खाते भी लगा सकते हैं, खाना खाने के इमीडिएटली बाद भी लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रात को कहीं पार्टी में गए हैं, आपने एक डोज इंसुलिन की मिस कर दी और नेक्स्ट डे आप वापस रूटीन में आ गए, तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज अ हैवक। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक दिन आपके शुगर खराब हुए, 2 दिन में अगले फिर सेटल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड अगले 2 दिन आप ठीक से बिहेव कर रहे हैं। सो जो भी आपकी डेविएशन है उनको मिनिमाइज करके चलें, इनफ्रीक्वेंट रखें। ये नहीं होना चाहिए कि रोज हमारी ग्रॉस डेविएशन हो रही। सो एनी डायबिटीज पेशेंट, any person with diabetes or any person with obesity in this period of festival time can enjoy everything, can enjoy every single party, can go for card parties, can have a drink every evening, can have some snacks which routinely they don't have, but they take it in moderation. If they don't overeat, they can eat anything and everything in moderation. And important thing is they maintain their exercise and they maintain their sugar monitoring. monitoring. अगर Basically, ये सिर्फ अगर आप रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुगर अपनी मॉनिटर कर रहे हैं और बेसिक डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चल रहे हैं, आप फेस्टिवल में उतना ही एंजॉय कर सकते हैं जितना कि कोई भी करता है। इनफैक्ट आपके ज्यादा एंजॉय करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको 250-300 ml पीने वाला मिलेगा, जिसकी वजह से आप और ज्यादा एंजॉय करें। basically it's striking the right balance. Yes. Kavita, would you like to add anything else? Mindful eating is the key. Moderate eating, moderate snacking, good hydration levels, physical activity. This is all I need to say. Sir, would you like to add anything else? I am just trying to think, have we missed on anything? I think we have covered most of it. Yes, sir. Party So- time we have covered nicely. Snacks, sweets. So about sweetener, yeah. About sweetener, one thing I want to tell is that बहुत सारा होता है कि सर मैं natural sweetener, तुमने भी word use किया natural sweetener. So natural sweetener, if you don't like the taste, you don't need to go for a natural sweetener. All sweeteners that are available in market largely are FDA approved, very safe, provided you are not consuming them in excess. And their actually toxic doses are much higher than the routine consumption of every single sweetener that you take on daily basis. So कोई भी स्वीटनर जो आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ओवर यूज नहीं करें स्वीटनर्स को, और इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर बिकॉज आपकी कैलोरिक इंटेक कम हो जाती है, आपका शुगर स्पाइक्स कम हो जाते हैं। दूसरा चीज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग वाइट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लीन मीट ऐड कर सकते हैं। आप वेजिटेरियन हैं, आप पनीर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटीन अगर आपकी डाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो आपकी शुगर फ्लक्चुएशंस या शुगर की स्पाइक्स भी कम हो जाती है। और रेगुलर वॉक करना मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मिस नहीं होना चाहिए फेस्टिवल टाइम में, चाहे बाकी सब चीज़ें आप जैसे भी करते हैं। So the key points to manage diabetes during festival season is keep moving, control your portion, monitor your sugar levels, and please take your medication on time. Take medication on time and don't misbehave with your celebration time also. Everything is okay in moderation. Moderation is the key. If you have a moderate behavior towards exercise, towards food, towards snacking, towards party,
towards drink, nothing is going to be, a challenge. But if you go towards extremes, whether you go towards extremes of, taking precautions, that also can be bad. You go to other extreme of neglecting diabetes, that can also be bad. So stay in moderation. Enjoy every single component of the festival time that you are going to have in next 7 days. I wish everyone a very happy, very nice Diwali and full of fun. But stay safe, maintain your exercise, and make sure you are checking your sugars and you know where your sugars are. That is going to help. Stay safe, stay blessed, and have a very, very happy Diwali. Thank you, everyone. Happy Diwali to all of you. So happy Diwali to everyone. And since next Thursday is on Diwali itself, so next Thursday we are not going to be there on Facebook. So we'll be seeing you after Diwali, and hopefully we'll have something more interesting for all of you post Diwali, how to go about it. Thank you. Thank you, Happy everyone. Diwali. Happy Diwali.